Good morning and Jai Hind, my dear student. Children, today we are going to just revise the whole syllabus of Unit Test 2. Basically, on the 4th, 5th, 6th, and 7th August, we shall just revise the whole syllabus of the Unit Test 2, that is Kingdom Animalia, Morphology of Flowering Plant, and Animal Tissue. आप जानते हैं बच्चों कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल चैप्टर में से जो है एनिमल टिश्यू ही केवल हम लोग के थ्योरी पोर्शन में है। कॉकरोच हम लोग पढ़े जरूर हैं। कॉकरोच हैज बीन एलिमिनेटेड बाय द सीबीएसई बोर्ड ड्यू टू द कोविड-19 in this session only. But you should know the morphology of cockroach also, because it is the very important part of our practical syllabus also. So we have discussed cockroach, but that is the not part of our unit test 2. Unit test 2 syllabus is chapter 4 Kingdom Animalia, chapter 5 Morphology of Flowering Plant, and the structural organization of animal, only animal tissue. So let us start to revise the Kingdom Animalia first of all. My dear kids, as you know that animals are being classified on the basis of certain criteria, such as body plan, number of germ layers, that is diploblastic or triploblastic, larval stage, that you know that is indirect development or direct development, presence of coelom, that is the body cavity, either they are acoelomate or pseudocoelomate or eucoelomate. Segmentation you have seen firstly in the phylum Annelida, that is metamerism, and skeleton, that is notochord, on the basis of which the kingdom Animalia has been divided into two divisions, which are invertebrates and vertebrates. Appendages, children, means appendages. The elementary structure appears like limbs, and absence or presence of symmetry, that they are either asymmetrical or symmetrical. और अगर वो सिमेट्रिकल हैं तो सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है कि बाइलेटरल सिमेट्री है, as well as we have seen the homologous structures also, same structure and same origin but different in functions. So such organs are said to be as homologous organs, and such organs are also the evidences of evolution. In this particular kingdom, in various phylum, we see the evolution, that is stepwise gradual modification. So children, if we discuss the characteristic of kingdom Animalia, that we know very well that animals cannot prepare their own food. They are heterotrophs, eukaryotic, developed nucleus they have, मल्टीसेलुलर दे आर, क्योंकि यूनिसेलुलर वाले जो थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने ले लिया था। सेल वॉल एब्सेंट होगा, यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। They don't have chloroplast, so they are heterotrophs. They can't prepare their own food. Okay, so because they can't trap the photons of sunlight by chlorophylls, and they are motile, they show the locomotion or movement from one place to another place, and they have sense organs through which they show various responses against stimuli, and they just receive the various stimuli, that is change in environment or change in surrounding. And these are the characteristic features of phylum Porifera. So we know if the kingdom Animalia has been divided into two divisions, which are invertebrates and vertebrates. एंड इनवर्टिब्रेट्स जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, बैकबोन या एलिमेंट्री नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, उनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है बच्चों। और इनवर्टिब्रेट में हम लोगों ने बैक टू बैक 8 फाइलम्स पढ़े हैं, जो कि इवोल्यूशन के बेसिस पे अरेंज होते हैं, दैट इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। इनवर्टिब्रेट्स डिवीजन में बच्चों हम लोगों ने पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, पेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिर इकाइनोडर्मेटा को पढ़ा था। लेट अस डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ पोरीफर्स। दे आर पोरीफर्स, दे हैव माइन्यूट पोर्स थ्रूआउट देयर बॉडी सर्फेसेस, and usually they are asymmetrical, but some shows radial symmetry also. They have totipotency. You know very well totipotency is the capacity to divide, in fact, and they possess the coenocytes, that is collar cell. कॉलर सेल होता है इनके पास बच्चों, through which they trap the food particles of the water current, because you know very well that all the physiology of sponges are associated with water current system, that is canal system. Children, they have a pseudoskeleton, in fact, made up of scleroblast cells and provided by spicules composed of calcium carbonate or silicon. तो अगर सिलिकॉन स्पंजिन्स बोलते हैं उसको, तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन के बने होंगे, और प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स भी होगा एक स्पंजिन,
और यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं यह कैनाल सिस्टम। आप जानते ही हैं कि कैनाल सिस्टम स्पंजेज का पेक्यूलियर फीचर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर आप माइन्यूट पोर्स देख रहे हैं, आस्टिया, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को पोरोसाइट सेल्स रेगुलेट करते हैं, और जबकि आस्कुलम इंटीरियर एंड पर बड़ा पोर है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को मायोसाइट से सेल रेगुलेट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में यह सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों कि कौन सा सेल किस ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा है, बिकॉज यू नो दैट स्पंजेज आर पैराजोअन्स, they are multicellular organism, but cells are not confined within tissue. Okay, individual cells perform a particular function. तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑस्टिया के थ्रू सी वाटर जो है वाटर करंट अंदर की ओर आ रहा है, और अंदर यह स्पंजोसील है। स्पंजोसील जहां पर इस सी वाटर करंट के अंदर ही जो है फूड पार्टिकल्स होंगे जिनको कोइनोसाइट्स अपने फ्लैजेला से ट्रैप कर लेंगे। अंदर फूड वैक्यूल्स के थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे बच्चों, जिससे डाइजेशन हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल और CO2 वाटर में डिजॉल्व होकर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। यहाँ एक बात और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लेनी चाहिए कि स्पंजेस के जो गैमीट्स होते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट गैमीट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ फ्यूज देयर, so gametes travel from one sponge body to another sponge body through this water current. So you can understand that all the physiology, all the metabolism of sponges are aligned with associated with canal system. और अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं मेरीन स्पंजेज, साइकॉन, लिकोसिलोनिया और यूप्लेक्टिला के एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट भी बोलते हैं बच्चों, यह ऑर्नामेंटल स्पंज होता है, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। And freshwater sponge, that you know only one sponge that lives in the freshwater ecosystem, that is Spongilla. So children, now come to discuss about phylum Coelenterata. Coelentrates, in fact, they have the gastrovascular cavity. Coelentron की वजह से इनका नाम Coelenterata रखा गया। और एक और नाम बच्चों हम लोगों ने देखा था Cnidaria, because of presence of nidoblast cells. इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होता है, बैटरीज या निमेटोसिस्ट कहा जाता है, थ्रू व्हिच दे परफॉर्म ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस आल्सो। सो फाइलम Coelenterata और नाइडेरिया, इन फैक्ट यू आर सीइंग हियर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ Coelentrates. Coelentrates आर मेटाजोअन्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब देखिए, अभी आपने वहां पर पैराजोअन्स देखा था स्पंजेज में, और जबकि यहाँ पे नया टर्म आपको दिखाई दे रहा है मेटाजोअन्स, बिकॉज दे आर मल्टीसेलुलर एंड सेल्स आर कन्फाइंड विद इन tissue. External cells forming the epidermis and the internal cell forming the gastrodermis, and inside gastrodermis they have the cavity that is well known as gastrovascular cavity. Okay बच्चों, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाए जाने के कारण ही इस परिवार का नाम Coelenterata रखा गया। दे आर एसिलोमेट एनिमल्स because they do not possess a second body cavity, the coelom. इनके पास भी कोई सेकेंड बॉडी कैविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो है इनको एसिलोमेट कहा जाता है। और हाइड्रा, एग्जांपल इसका आपने भी दिखाई है, हाइड्रा। Hydra is the representative animal of this phylum. In fact, Hydra was recognized by Anton van Leeuwenhoek. In fact, and Hydra has 4 species: Hydra vulgaris, Hydra oligactis, Hydra viridissima, and Hydra gangetica. हाइड्रा की 4 जातियां होती हैं बच्चों, 6 से लेकर 10 तक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यह एंटीनी के तरीके से काम करते हैं और वातावरण के परिवर्तनों को रिसीव कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 से 10 तक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रा के अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है और टेंटिकल्स के ऊपर निडोब्लास्ट सेल्स पाए जाने के कारण इस परिवार का नाम नाइडेरिया रखा गया। सी वन मोर एग्जांपल, सी हियर वन मोर एग्जांपल चिल्ड्रन ऑफ दिस फाइलम। This one is the Physalia. Children, see here, Physalia. इसको जो है Physalia या पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगालियों के जहाज के तरीके से दिखाई देने के कारण ही इसका नाम रखा गया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पॉलिप और मेड्यूसी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। हाइड्रा के अंदर, Coelentrates के अंदर 2 तरीके के लाइफ फॉर्म, पॉलिप और मेड्यूसी। पॉलिप फॉर्म आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, बडिंग होती थी, जहां पर पेरेंट्स के बॉडी सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल आउटग्रोथ अराइज हो जाते थे बट, और पेरेंट बॉडी से ही नरिशमेंट लेते थे, और फेवरेबल कंडीशन आने पे बट पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाते हैं बच्चों,
अलग हो जाते हैं and develop into new hydra of spring, and here in medusae form they produce the gametes of opposite strength. Children, now come to the another phylum of invertebrate, that is platyhelminthes, commonly known as flatworms. Plates means flat, helminthes means worms. Worms are the creeping invertebrate animals and they are said to be as flatworms, tapeworms and fluke. तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे बच्चों। एक्चुअली दे आर डार्सोवेंट्रली फ्लैटेड। डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होने की वजह से यह चपटे दिखाई देते हैं और इनको कॉमनली हम लोग फ्लैट वर्म कहते हैं। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर, सिंपलेस्ट एनिमल, बाइलेटरी भी, कभी कभी बाइलेटरली सिमेट्री भी होती है। ये 3 जर्म लेयर वाले पहले एनिमल है बच्चों। अभी तक हाइड्रा तक डिप्लोब्लास्टिक हम लोगों ने देखा था और यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन सभी मेंबर नहीं। सम आर डिप्लोब्लास्टिक एंड सम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। You know, the diploblastic animals consisting ectoderm and endoderm, whereas middle layer, that is mesoderm, comes in between ectoderm and endoderm in the triploblastic एनिमल्स। तो यहाँ से पूरी प्लेटीहेल्मिन्थेस आगे से हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दिखाई देंगे बच्चों। यह पैरासिटिक होते हैं ज्यादातर और इन वो हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, पिग के अंदर, मैन के अंदर ये पैरासाइट के रूप में होते हैं। ओरल सकर्स होते हैं इनके माउथ की चारों तरफ, ओरल सकर्स, और वेंट्रल सकर्स भी होते हैं, अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर सकिंग द फ्लूइड ऑफ होस्ट। वेंट्रल सकर्स आर यूज्ड जस्ट फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। माउथ एंटीरियर होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका ट्रायंगुलर होता है बच्चों, और 2 मेन ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें स्मॉलर ब्रांचेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 1 इंटरमीडिएट होस्ट। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट होस्ट भी पाया जाता है। बेहतरीन एग्जांपल आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन इसके अंदर होता है। जानते हैं आप, पहली बार यहाँ पर आई स्पॉट्स पाए गए। ध्यान दीजिएगा, एज यू नो दैट इवोल्यूशन इज द स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। तो हाइड्रा में आपने टेंटिकल्स देखा था सेंसेस के रूप में, और यहाँ पहली बार आई स्पॉट्स पाए गए जो लाइट को डिटेक्ट भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आई स्पॉट्स पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर प्लेनेरिया में देखा गया, और जो लाइट को डिटेक्ट भी करता है बच्चों, आई स्पॉट्स। और इसके बाद आप देख रहे हैं दिस वन इज लिवर फ्लूक, साइंटिफिक नेम फैसियोला हिपैटिका, साइंटिफिक नेम फैसियोला हिपैटिका, and this is the parasite of liver, and here you are seeing the tapeworm Taenia solium. It is bihost animal. Okay, it is bihost animal. Its primary host is pig and secondary host is man. The man who eats pig meat, that is pork, can be affected by the Taenia or tapeworm, and it reaches to the central nervous system through the blood circular system and finally damage the central nervous system of such affected person, and such disorder is said to be as teniasis and the name of tinea. So please note the example of this phylum, that is planaria, liver fluke, and tapeworm, that is Taenia solium. Please note it. Okay, my dear kids. So you are seeing here the planaria, the liver fluke, fasciola hepatica, and the tapeworm. Okay, that is Taenia solium. Now, children, examples of platyhelminthes. See here the flatworms. We have seen different kind of flatworms already. Planaria. यहाँ पर आप रीजनरेशन देख रहे हैं प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से रीजनरेशन होता है। दे हैव टोटिपोटेंसी, दैट इज द कैपेसिटी टू डिवाइड। और यहाँ पर प्लेनेरिया की देखिए बॉडी जितने भागों में बट रही है, हर भाग एक नया प्लेनेरिया का आप स्प्रिंग बना ले रहे हैं, दैट इज द रीजनरेशन। Okay, children. Now see the next phylum of invertebrate, that is phylum Aschelminthes, commonly known as roundworm. यह एक इम्पोर्टेंट फाइलम है बच्चों, और यहाँ पे अब आपको और ज्यादा इवोल्यूशन नजर आएगा। यह सब पैरासिटिक नेचर के होते हैं और डिजीज कॉजिंग होते हैं बच्चों, जो बहुत ही डिसऑर्डर्स को फैला रहे होते हैं। आप यहाँ एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस causing एस्केरियासिस एंड बुचरेरिया बैंक्राफ्टी causing एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। सो सी द कैरेक्टर्स। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए, अभी तक प्लेटीहेल्मिन्थेस तक हम लोगों ने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, और जबकि एस्केल्मिन्थेस में बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जबकि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा फ्रॉम माउथ टू एनस,
और अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक केवल एक ही ओपनिंग थी जो है इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए, जबकि इसके एलिमेंथीज में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नजर आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है लेकिन पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पुअरली डेवलप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस इन दिस फाइलम ओनली। इसके एलिमेंथीज के परिवार से ही सेक्सुअल डिफरेंशिएशन शुरू हुआ था, दैट इज मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर जनरल अगर इंफॉर्मेशन हम देखें तो टर्म एस्केल में रेफर टू लार्ज ग्रुप अबाउट 10 डिफरेंट फाइला, और सॉफ्ट बॉडीज होते हैं इनको नीमाटोडा भी कहा जाता है। नीमाटोडा बोले तो थ्रेड वर्म, इनको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। एस्केरिस इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, इसी का एक एग्जांपल था बच्चों, एक मिनट, इसका एक एग्जांपल पहले समझ लीजिएगा। इसमें एक और एग्जांपल है बुचेरेरिया बैंकक्राफ्टी या बुचेरेरिया मलाई। ये बुचेरेरिया बैंकक्राफ्टी या बुचेरेरिया मलाई जो है बच्चों, यह क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू हमारे अंदर आता है और यह काज करता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, क्योंकि यह लिम्फ नोड का, लोअर लिम्स के यानी पैरों के लिम्फ नोड का पैरासाइट है, और इसके इन्फेक्शन से जो है लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और एक पैर के मसल्स इतने थिक हो जाते हैं, स्किन इतना थिकर हो जाता है कि एलिफेंट के तरीके से दिखाई देने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को कहा जाता है फील पाँव या हाथी पाँव, फील पाँव या हाथी पाँव, दैट इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ओके माय डियर किड्स, now come to the next phylum of division invertebrate, that is phylum Annelida. Annelids, this is Greek word. Annelids means metamerism, that is segmentation. तो यहाँ से आपको segmentation नजर आएगा। Body is divided into various segments. Number of segments are fixed. They are hermaphrodite animal. ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये hermaphrodite animal होते हैं। hermaphrodite का मतलब होता है bisexual animals, यानी एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म यानी कि केचुआ, इसीलिए जब दो अर्थवर्म आपस में मिलते हैं बच्चों तो यह उल्टा यानी जक्स्टापोजिंग डायरेक्शन में मिलते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। दोनों ही अर्थवर्म फर्टिलाइज्ड हो रहे होते हैं, क्योंकि अर्थवर्म की एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। 8, 9 and 10 segments comprises male sex organs and 18, 19 and 20 segments comprises female sex organs. So juxtaposing, that is the cross fertilization takes place in this particular phylum, that is phylum Annelida. And in this particular phylum, first of all, metamerism has been seen, that is segmentation. तो मैंने बताया आपको कि एनिलिड्स या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मरीन भी होते हैं, और मरीन का बेस्ट एग्जांपल नेरिस है बच्चों, नेरिस, और नेरिस के लेटरल अपेंडेजेज को कहा जाता है पैरापोडिया, पैरापोडिया। और जबकि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इसका अर्थवर्म है। अर्थवर्म जानते हैं आप, फेरिटिमा, पोस्थुमा, इनफैक्ट अर्थवर्म एंड सैंडवर्म, ब्रिसिल वर्म इसमें पाए जाते हैं। लीच आप जानते हैं, लीच आपने लैब में देखा भी है, लीच। लीच साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा लीच डोंक बोलते हैं बच्चों हम। यह सैंगीबोरस एनिमल होता है, मेनली बफेलोज के स्किन पर पाया जाता है और ब्लड को सक करता है, लेकिन यह हमारे ऊपर भी आकर और हमारे भी ब्लड को सक कर सकता है बच्चों। तो यह लीच, और लीच के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं एनेलिडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का। तो यह वर्मी फॉर्म होते हैं, टिश्यू और ऑर्गन है यहाँ पर। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, वह भी गट्स में बटे होते हैं, मस्कुलर गट्स होते हैं, माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल जा रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो सुप्राओइसोफेगियल गैंग्लियन है, दैट इज द सर्कुलर रिंग ऑफ न्यूरॉन, एंड नेफ्रिडिया इज रिस्पांसिबल फॉर द मोस्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया है, दैट इज नेफ्रिडिया और नेफ्रिडियोफोर्स, which are the minute pores present in the last segment of earthworm and responsible for the elimination of nitrogenous waste material. Now see here the regeneration in annelids. Annelids के अंदर regeneration की भी क्वालिटी होती है, इसलिए पुराने समय से ही, अर्लियर टाइम से ही इनको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म के रूप में कंसीडर किया जाता है बच्चों। यह देखिए रिजनरेशन इन अर्थवर्म आप देख रहे हैं बच्चों। और अब आइए हम लोग सबसे बड़े परिवार के बारे में डिस्कस करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स का या वर्टिब्रेट्स का, या कह लीजिए पूरे एनिमल्स का सबसे बड़ा परिवार आर्थ्रोपोडा।
दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। यह कि एनिमल्स का, दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें आर्थ्रोपोडा को ही सबसे बड़ा परिवार माना गया है बच्चों। 90,000 से भी ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, containing more than 90,000 species, and they are arthropods. Arthro means jointed and pods means limbs. So they have three pairs of jointed limbs. इसीलिए इस परिवार का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया। इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है, एंड देयर सेगमेंटेड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी जो है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी होती है बच्चों आर्थ्रोपोडा की, और इनके पास 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा इसके कैरेक्टर्स को। The segmented bodies are arranged into regions called as stigmata, that is head, thorax and abdomen. Three pairs of appendages present, that are legs, antennae are jointed also, and they possess a chitinous exoskeleton, chitin का बना हुआ। They have bilateral symmetry, means their body can be divided into two equal and identical halves through the longitudinal axis of body. And the nervous system is dorsal, belly, and the circulatory system is open and ventral back. ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन है बच्चों, और जबकि इनका जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वह बेली में है। अगर काकरोच के सिर को काट भी दिया जाए तो काकरोच 8 से 10 दिन तक जिंदा रह सकता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, काकरोच कैन सर्वाइव 8 to 10 days इवन आफ्टर द कटिंग ऑफ इट्स हेड, बिकॉज the nervous system of cockroach is mainly present in its thorax and in its abdomen, not in heads. और जबकि आप जानते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे हेड में ही होता है, इसीलिए अगर हमें हेड में चोट लग जाए तो हमें हमें बचने के चांसेस कम होते हैं। और जबकि काकरोच के तो सिर को भी अगर काट दिया जाए तब भी यह 8 से 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स इसके थोरेक्स में और इसके एब्डोमेन में है बच्चों। तो आपने इस तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा तक देख लिया। और आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप जानते ही हैं आर्थ्रोपोड्स लैक कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। एपीकल्चर में हनी एंड वैक्स के लिए, सेरीकल्चर में सिल्क के लिए, लैक कल्चर में लैक के लिए इनको रियर किया जाता है बच्चों इंसेक्ट्स को। ये फैमिली ऑफ इंसेक्ट्स है, और यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंस इनका है पॉलिनेशन में, क्योंकि हमारा जो फूड क्रॉप है, जो हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, यह 50% से ज्यादा केवल इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है बच्चों। देन दैट इज एंटमोफिली, जिसको हम एंटमोफिली कहते हैं चिल्ड्रन। तो यह एंटमोफिली होता है। और अब हम लोग बात करेंगे अगले परिवार का, जो कि है फाइलम मोलस्का। तो आइए, आर्थ्रोपोडा के बाद अब हम लोग मोलस्का को डिस्कस करते हैं। डिवीजन इनवर्टिब्रेट का सेकंड लास्ट फाइलम और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी। आर्थ्रोपोडा के बाद दुनिया में सबसे अधिक मोलस्कन्स ही पाए जाते हैं। मोलस्कन्स, स्नेल्स, octopus, you are knowing very well. They are said to be as calcareous animals because they have calcareous body. इसके एक जो skeleton in fact made up of calcium carbonate that is well known as mantle. और अंदर का जब स्नेल या मोलस्कन जब मर जाता है बच्चों, बैक्टीरिया और फंगाई अपने नेचर के तहत डिकम्पोज कर लेते हैं, तो ऊपर का मेंटल बहते हुए पानी में आता है। और आपने बालू में छोटे छोटे शंख भी देखे होंगे, और पंडित जी जो लोग बड़ा शंख जो बजाते हैं, दैट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ पाइला ग्लोबुसा, दैट इज द स्नेल। तो डिफरेंट तरीके के आपने शंख भी देखा होगा बच्चों, दैट इज एक्सोस्केलेटन of molluscans basically made up of calcium carbonate CaCO3. That's why they are said to be as calcareous animal. इसीलिए जो है उनको calcareous animal कहा जाता है बच्चों। And their body is divided into head, the mantle that is the exoskeleton, and hump as well as the muscular foot. First of all, muscular foods are arised in phylum Mollusca. आपने ऑक्टोपस के मस्कुलर फूट के बारे में सुना भी होगा और डिस्कवरी पे देखा भी होगा। ऑक्टोपस अपने मस्कुलर फूट से जो है
पानी के जहाज को भी पकड़ सकता है बच्चों, इसीलिए ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, डेविल फिश। तो यह फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स जो हम लोगों ने देखे। मोलस्कन्स inhabit marine as well as fresh water. Some are present in terrestrial habitat also. They show the bilateral symmetry, possess muscular foot, soft body, but exoskeleton of calcium carbonate, triploblastic, calcareous cell। ध्यान दीजिएगा, कैलकेरियस सेल जो है यह इनका प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसी के कारण दुनिया में अगर आर्थ्रोपोड्स की बात किया जाए तो सबसे अधिक मोलस्कन्स ही पाए जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड है, सेंसेस और सेक्सेस जो है इनके सेपरेटेड रहते हैं। मोलस्कन्स सॉफ्ट बॉडी, नॉन मेटामेरिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल्स, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और यह इनवर्टिब्रेट है बच्चों। यानी अभी तक हम लोगों ने जितना भी फाइलम देखा कहीं पर भी नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया। और इसी इनवर्टिब्रेट के आखिरी परिवार को हम लोग अब देखने जा रहे हैं, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइंस, कांटे, एंड डर्म मीन्स स्किन, यानी जिन ऑर्गेनिज्म के स्किन के ऊपर कांटे, स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दे आर सेड टू बी एज इकाइनोडर्मेटा एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ध्यान दीजिएगा, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, सब समुद्र में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में बिल्कुल नहीं पाए जाते। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी सिमेट्री भी बड़ी रोचक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लार्वल लेवल पर यह रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि आप फाइलम सिलेंट्रेटा अनवर्ड अभी तक हमेशा सिलेंट्रेटा में आपने रेडियल देखा था, उसके बाद प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में आपने हमेशा बाइलेटरल सिमेट्री ही देखा बच्चों। लेकिन इकाइनोडर्मेट्स के लार्वल स्टेज में रेडियल सिमेट्री सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट होने पर यह रेडियल सिमेट्री शो करने लगते हैं। यह देख रहे हैं आप स्टारफिश, वेंट्रल साइड में माउथ, डॉर्सल साइड में एनस और वाटर वेस्कुलर सिस्टम चल रहा होता है इनके अंदर। और एक्सक्लूसिवली मेरीन देखिए, मैंने बताया आपको। बाइलेटरल देखिए, लार्वल फॉर्म जो रहते हैं बाइलेटरल शो करते हैं, और जबकि एडल्ट्स इनके जो होते हैं वह रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। प्लीज नोट इट चिल्ड्रन कि इनके लार्वल स्टेज बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं हमें लोगों की तरह, लेकिन एडल्ट फॉर्म इनके जो है रेडियल सिमेट्री शो करते हैं इकाइनोडर्मेट्स के। या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रू सिलोम है, इसीलिए इनको यू सिलोमेट कहते हैं बच्चों। तो यह इकाइनोडर्मेट्स स्टारफिश देख रहे हैं आप, साइंटिफिक नेम एस्टेरियास, एंड द on the whole the physiology is associated with water vascular system. Sea water enters inside the body through the mouth and through tube feeds. It travels throughout the 5 arms and diffusion of O2 and CO2 takes place. That is respiration. Some food particles come inside the starfish body through the water current. That is ingestion. And through the water current, CO2 and excretory materials exit from the body. That is excretion and completion of respiration. That's why I am saying that all the physiology of starfish or echinodermates are associated with the water vascular system. So, my dear kids, here you are seeing the starfish, different form of starfish, and different form. And now, after completing the invertebrates, in the next class tomorrow, we shall discuss about वर्टिब्रेट्स। कल हम लोग वर्टिब्रेट्स की भी चर्चा कर लेंगे, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमिलिया, इन पांचों को हम लोग बच्चों कल कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन इनका। इस तरीके से 2 क्लास हो जाएगा, और फिर अगले 2 क्लासेस में यानी कि 6 अगस्त और 7 अगस्त को, 6 अगस्त को हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और 7 अगस्त को हम लोग एनिमल टिश्यू रिकैप्चुलेट करेंगे बच्चों। सो प्लीज ट्राई टू रिकैप्चुलेट बाय योरसेल्फ आल्सो। घर में भी आप अपने से दोहराने की कोशिश करिएगा। ये वर्टिब्रेट्स का चार्ट है, यहीं से हम लोग अगले क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। तो इस चार्ट को आप अच्छे से रिकैप्चुलेट किए रहिएगा, जहाँ पर कि आप जानते हैं इन्हें जबड़ों के आधार पर एग्नेथा, लेक्स जा, ग्नेथोस्टोमेटा, बियस जा में बांटा गया था, और ग्नेथोस्टोमेटा को फर्दर बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स एपोडा और टेट्रापोडा में बांटा गया। एपोडा के अंदर सुपर क्लास फिशेज, जिनको 2 क्लासेस में बांटा गया, कॉन्ड्रिक फाइस और ऑस्टिक फाइस, कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज में। और जबकि टेट्रापोड्स जिसमें 4 पैर थे, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्स, इनको 4 क्लासेस में बांटा गया, विच आर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स।
So please just recapitulate the chart of the vertebrate and prepare the general characteristic features of each and every phylum of division invertebrate. Thank you very much.